Hello students, this side Nitika Vasan from DAV Institute of Engineering and Technology Jalandhar. In this presentation video, I will discuss with you the topic under the head company meetings. That is, number one type of meeting is members meeting. Number one member meeting is annual journal meeting under the section 96 in Companies Act 2013. So, first of all, what does it mean? Annual journal meeting is a meeting that is held once in a year. Once in a year means a financial year is of 12 months. So, within the 12 months of a particular company, it is mandatory for every company other than one person company to hold annual journal meeting. Annual is basically meant by a 12 by a year is of 12 months, or you can say calendar year. So but after 2013, the calendar year is changed and the financial year is came into the existence, that is from 1st April to the 31st March. So within the 12 months, it is mandatory for every company to hold one meeting, that is called as annual journal meeting. Or the authority is in the hands of board of directors to call upon the AGM. In the next slide, the objectives of holding an AGM. Why we have to hold AGM, why it is required to. Number one is to review the functioning of the company. It is essential that the shareholders must assemble at least once in every year. ये ज़रूरी है कि जब आप मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, when you are running a business में कितने members हैं, कितने shareholders हैं, number of shareholders are there, पूरे साल में एक बार उनका मिलना ज़रूरी है. वंस इन अ ईयर मिल के डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में. सो वंस इन अ ईयर इट इज़ mandatory how business is running, how the proper functioning is going on. It is necessary. Next is consideration of accounts, balance sheet and reports of board of directors and auditors. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी चेक करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट सबमिट करवानी है. ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी, हाउ वेल दे आर वर्किंग, उसके बारे में भी डिस्कशन करना. सो एजीएम इज नीडेड. नेक्स्ट इज फाइनल डिविडेंड आर डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड इन दिस मीटिंग. अंडर एनुअल जर्नल मीटिंग, how much dividend is to be proposed and how much actual dividend to be paid to the every shareholder. There are different classes of shareholder. Equity shareholder is there, preference shareholder is there, and debentures are under the long term debts. So every shareholder, how much dividend is to be declared, ये जो decision है AGM में लिया जाता है in meeting. So that's why AGM is required. Next is for appointments of directors. Who is going to direct the meetings? Who will be the director? एनुअल जर्नल मीटिंग में डिसाइड होगा कि अपकमिंग मीटिंग्स जो हैं, कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसके लिए डायरेक्टर कौन अपॉइंट होगा. तो एजीएम में ये डिसीजन लिया जाता है. नेक्स्ट इज फॉर अपॉइंटमेंट एंड फिक्स्ड द रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड रेम्युनरेशन, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी उनको रेम्युनरेशन, जो एक्स्ट्रा कमीशन जो है उनको देनी है ऑडिटर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, वो भी कितनी देनी है, हाउ मच इट शुड बी, इट इज़ डिसाइडेड इन द AGM. Next is legal provisions to hold AGM. There is a legal provisions. Time period is fixed under the rules given by the Companies Act 2013. If it is first AGM, अगर पहली annual journal meeting है, then AGM to be held within the 9 months of closing of financial year of a company. Financial year जब खत्म हो रहा है, either it is on 31st December, either it is on 31st March, within the 9 months AGM हो जानी चाहिए एक मीटिंग जो है. एंड इफ द AGM इज सो हेल्ड, देयर इज नो नीड टू होल्ड AGM इन द ईयर ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन. अगर एक बार आप एनुअल जनरल मीटिंग कर चुके हैं, तो जिस साल में इनकॉर्पोरेशन हुई है, जिस साल में आपने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया है, उस साल में रिक्वायरमेंट नहीं है दोबारा से AGM करने की. इन केस ऑफ अदर AGM, पहली AGM आप कर चुके हैं, बाकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो कैसे होगी.
AGM to be held within the 6th month from the date of closing of financial year. फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया जब उसके 6 मंथ के बीच बीच में AGM हो जानी चाहिए. Next is AGM is to held within 15th months of last AGM. लास्ट AGM जब हुई थी उस मीटिंग के बाद आपको 12 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया. अगर आपने विद इन 12 मंथ्स AGM नहीं कंडक्ट करी, नहीं हेल्ड करी, आफ्टर दैट आपको 3 मंथ्स की एक्सटेंशन मिलती है. इट मीन्स 12 मंथ्स आर देयर, 12 मंथ्स का गैप होना ज़रूरी है हर AGM में. उसके बाद 3 मंथ्स की एक्सटेंशन है. इट मीन्स मैक्सिमम 15 मंथ्स यू हैव to conduct a AGM. Next, registrar may for any special reason can grant extension up to only 3 months. registrar जो है वो 3 months की और extension दे सकता है अगर कोई valid special reason है कि क्यों कंपनी ने statutory meeting held नहीं करी. Next is time, place and day of AGM. Time, it must be from the 9 AM to 6 PM. Working hours होने चाहिए, business hours जो कि from 9 AM to 6 PM. Next day, the day should be normal working days, not a national holiday that is declared by the central government. Place, it should be held at the registered office of a company or some other place within the city, town or village in which registered office is situated. Either it should be registered office or either it should be on the any place, any locality in the city, in the village, town where registered office is situated. क्लियर, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसी जगह पे, उसी एरिया में, उसी प्लेस में, व कहीं भी आप कोई लोकेलिटी चूज कर सकते हैं. एक्सेप्शंस टू अबव, एक्सेप्शंस जहाँ पर ये सिचुएशन, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती. नंबर 1 इज if a day is declared by central government to be a holiday after the issue of notice, it shall not be deemed to be a public holiday in relation to that meeting. अगर आपने नोटिस पहले सर्कुलेट कर दिया है AGM का, उसके बाद गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे अनाउंस किया है, तब वो हॉलीडे पब्लिक हॉलीडे नहीं माना जाएगा. मीटिंग आपकी उसी दिन स्केड्यूल डे ही हेल्ड होगी और वो कंटिन्यूटी में चलेगी. नेक्स्ट इज वेयर AGM adjourned because of lack of quorum, it is to be held on the same day, time, place in the next week even if that day is a public holiday. AGM अगर आपकी पोस्टपोन हो गई है, adjourned हो गई है, तो वो अगले वीक में सेम डे, सेम टाइम, सेम जगह पे होगी, चाहे उस दिन पब्लिक हॉलीडे क्यों ना हो, बट होगी वो उसे देनी. these two are the exception to the AGM. नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑन AGM सेक्शन 121. रिपोर्ट जो है एनुअल जनरल मीटिंग की जो प्रिपेयर करनी है अंडर 121, इट मैंडेट्स एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू प्रिपेयर इन इट द प्रिस्क्राइब्ड मैनर. हर पब्लिक कंपनी को एक जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है रिपोर्ट तैयार करनी मैंडेटरी है. अ रिपोर्ट ऑन ईच AGM shall include confirmation to the effect that meeting was convened and held and conducted as per the provision. उसमें लिखा होना चाहिए कि जैसे आपने डिसाइड किया था, जैसे रूल्स के अकॉर्डिंगली आपने कंडक्ट करी है, हेल्ड करी है, कंडक्ट किया है एज पर द प्रोविजंस. अ कॉपी ऑफ रिपोर्ट it must be given to registrar in form management, that is 15 form number 15 में फिल करके within the 30 days of the conclusion of the AGM. जब आपकी मीटिंग AGM हो गई, फाइनल हो गई ओवर, उसके बाद विद इन द 30 डेज आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इसकी कॉपी जो है रिपोर्ट की सबमिट करवानी है. सेंट्रल गवर्नमेंट में exempt any company from the aforesaid provision subject to such condition as it may impose. सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को exempt कर सकती है रिपोर्ट ना बनाने से. ये गवर्नमेंट के हाथ में है कि अगर किसी कंपनी को वो exempt करना चाहती है by imposing certain conditions. Next, default in holding AGM. If a company default in holding an AGM, अगर कोई कंपनी AGM नहीं कंडक्ट करती, then what will be the consequences and what will be the penalty? Number 1, Section 97. NCLT, that is National Company Law Tribunal, may direct the calling of AGM provided any member of a company approach to it in this regard. NCLT किसी को भी डायरेक्शन दे सकती है कि AGM कंडक्ट करो. इवन इट कैन डायरेक्ट एनी पर्सन
किसी को ऊपर किसी भी एक पर्सन को, कंपनी के मेंबर को बोल सकती है प्रॉक्सी, एज अ प्रॉक्सी, या जो कि मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करे और मीटिंग को बिल्कुल कंडक्ट करे। नेक्स्ट सेक्शन 99, द फेलियर टू call this meeting is an offense punishable with fine which may extend to rupees 1 lakh on the company or every officer to of the company। अगर मीटिंग कंडक्ट नहीं होती, ऑफेंस है, दैट्स वाई 1 लाख रुपए का जो फाइन है वो पेनल्टी डेफिनेटली ऑन द कंपनी और एवरी ऑफिसर जो है उसको लग सकती है। अगर फिर भी आफ्टर द पेनल्टी, आफ्टर द फाइन, अगर फिर भी देयर इज अ डिफॉल्ट, अगर तब भी एजीएम नहीं कंडक्ट होती, तो जो फाइन है वो हर दिन का 5000 एक्सटेंड हो सकता है और होगा हर दिन का। Next slide is important cases related to AGM. Number one is Shri Meenakshi Mills Company Limited versus Registrar of Joint Stock Company Year 1938 MAT 640। ये केस है, उसका नंबर है। इस केस में डिस्कस क्या किया है, इट वॉज हेल्ड दैट अ मीटिंग हेल्ड इन करंट ईयर एज एन एडजर्न्ड मीटिंग ऑफ द एजीएम ऑफ द प्रीवियस ईयर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एजीएम ऑफ फॉर द करंट ईयर। इट मीन्स कि अगर आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल की एडजर्न्ड एजीएम को कंडक्ट किया है, देन वो एडजर्न्ड कंडक्टेड एजीएम वो पिछले साल की मानी जाएगी, वो करंट फाइनेंशियल ईयर की एजीएम नहीं मानी जाएगी। और हर फाइनेंशियल ईयर में एक एजीएम होनी मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज तपन कुमार चौधरी वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी 2003। It was held that for a failure to hold a meeting, it will not considered to be defense that on account of criminal case against the secretary of the company, some important books were exhibited in the court as they had not been realized in the time, no accounts could be prepared and no meeting could be held। हेयर इट मीन्स दैट एक जो कंपनी है अगर वो फेल हो जाती है मीटिंग कंडक्ट करने में, तो उसमें उसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए, डिफेंस में ये नहीं बताना, ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि क्रिमिनल केस अगर आप कर दें कंपनी के सेक्रेटरी के ऊपर कि यस ये अगर केस चल रहा है कि उस पर्सन ने बुक्स नहीं कोर्ट को दिखाई या प्रॉपर टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो ही रेडी नहीं है, so there is no need to conduct a meeting। Next is Asia Udyog Private Limited 1965। It was held that where the police has seized the books of accounts of a company, then the company is exempted from holding annual journal meeting। Same, अगर जो पुलिस है ने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर ली हैं, देन कंपनी को एग्जेम्पशन है, कंपनी को जरूरत नहीं है कि एजीएम वो कंडक्ट कर सके। Next is type of meeting is statutory meeting. Section 165 of Companies Act 1956. This here it is old because this is the main basic meeting that is mandatory. This is a legal, this is mandatory meeting. It is basic. It is to be held by every company, every public company limited by shares or limited by guarantee and having share capital must hold a journal meeting of its members to be called as statutory meeting, and it is the first meeting of members of the company after its incorporation। जब एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी इनकॉर्पोरेशन के बाद, जो पहली मीटिंग है उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी मीटिंग। एंड टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग इज इट मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 मंथ। अब इनकॉर्पोरेशन के विद इन द 1 मंथ स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जानी चाहिए सारे मेंबर्स की। सेकेंड इज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर आपने विद इन द मंथ स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट नहीं करी, देन आपको अदर नेक्स्ट 5 मंथ्स की लिमिट टाइम पीरियड दिया जाएगा। इट शुड नॉट एक्सीड द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब से आपने बिजनेस स्टार्ट करना है अंडर द कंपनी, जब आप इनकॉर्पोरेशन करवा चुके हैं, यू आर हैविंग इनकॉर्पोरेटेड लीगल कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है, तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर, मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग हो जानी चाहिए।
Next is objectives of holding statutory meeting. Number one is to give information to members regarding issues related with the promotion and formation. ये पहली मीटिंग होती है जो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन कंडक्ट की जाती है, तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंबर्स को दी जाएगी कि हाउ इट इज़ प्रमोटेड, प्रमोशन में कितना खर्चा आया, कैसे फॉर्म हुई कंपनी, एंड टू मेक एंड क्लियर द डाउट्स एंड कन्फ्यूजन इफ एनी वन इज हैविंग इन देयर माइंड्स। किसी भी मेंबर के माइंड में अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए। टू डिस्कस द इश्यूज रिगार्डिंग द सक्सेस ऑफ फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी। फ्लोटेशन मीन्स हाउ मच यू वांट टू रेज मनी। फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी, कितना पैसा रेज करना है, कितना पैसा कितना किसके हिस्से में आएगा, कितने शेयर्स अलॉटमेंट होंगे, ये सारा डिस्कस करने के लिए। To take consent of the members regarding any modification in the terms of contracts specified in the prospectus। जो उन्होंने prospectus रेडी किया है कंपनी के लिए, कंपनी की प्रमोशन के लिए, कंपनी को एक यू कैन से इट इज अ prospectus is just like a book to invite the public, to invite the prospective investors so that they can invest money in your company। सो उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशंस चाहिए या करनी है तो उसके लिए भी स्टैट्यूटरी मीटिंग में डिस्कशन की जाएगी। नेक्स्ट इज कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग। जिनको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं कंडक्ट करेंगी, एनी प्राइवेट कंपनी, एन अनलिमिटेड कंपनी, जिस कंपनी में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी उसमें, देन उनको ज़रूरत नहीं है कि वह स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करें। और अ कंपनी दैट इज़ लिमिटेड बाय गारंटी बट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, दैट इज़ ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग अ स्टैट्यूटरी कंपनी, सॉरी स्टैट्यूटरी मीटिंग। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। सिमिलरली लाइक एजीएम के बाद भी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, सिमिलरली स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। एंड report must comply with the following guidelines of a company law. Number one is sent to the members at least before 21 days बिफोर द डेट ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। जिस दिन आपने मीटिंग कंडक्ट करनी है उससे 21 डेज पहले आपको ये रिपोर्ट जो है अपने हर मेंबर को भेजनी है। इफ़ लेस देन 21 डेज देन कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप 21 डेज से कम दिन पहले भेज रहे हैं, हार्डली 15 डेज या 10 डेज, तो उसके लिए हर मेंबर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड रिपोर्ट जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए, सिग्नेचर हुए होने चाहिए बाय 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। ऑडिटर ने पूरी फाइल चेक करनी है, जो अलॉटमेंट दिखाई गई है, जो रिपोर्ट में मैंशनड है, इज इट राइट, ट्रू, फेयर और नॉट, जितनी एक्चुअल है उतनी ही है या कुछ इसमें विंडो ड्रेसिंग की हुई है। नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट्स होंगे। नंबर वन शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जितने अलॉट किए हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने शेयर्स, किस शेयर होल्डर को कितने शेयर्स दिए गए हैं, कंसीडरेशन कितनी है, कितनी वैल्यू है उन शेयर वैल्यू कितनी है, कितना कैश रिसीव किया है कंपनी ने और कितने अलॉटमेंट करी है, रिसिप्ट कितने पैसे, कितनी एप्लीकेशन मनी आई है, कितनी अलॉटमेंट मनी आई, कॉल्स कितनी आई हैं, डिबेंचर्स इशू की हैं तो तब कितने पैसा रिसीव किया है कंपनी ने, पेमेंट्स कितनी करी हैं और बैलेंस कितना बचा हुआ आफ्टर द पेमेंट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने थे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले खर्चे किए जाते हैं, प्रमोटर खर्चा करता है, उसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, उनके नेम्स, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ डायरेक्टर्स, एवरीथिंग इज मेंशन इन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करी है कंपनी के नाम पे, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं और उनकी मीटिंग में अप्रूवल लेनी है या फर्दर उनको कंटिन्यू करना है या उसके बारे में भी मेंशन किया होना चाहिए। एरियर्स फॉर कॉल्स, आउटस्टैंडिंग कॉल्स कितनी हैं, एरियर्स ड्यू ऑन द कॉल्स फ्रॉम एवरी डायरेक्टर और अ मैनेजर, कोई भी कॉल्स हैं, कॉल मनी है, वो अगर आउटस्टैंडिंग है उसके बारे में मेंशन किया होना चाहिए। कमीशन और ब्रोकरेज, any commission or brokerage fees is to be paid on the shares debenture holders to any director or a manager. It should be written in the statutory report. Next is consequences of default. अगर statutory meeting नहीं held होती then what will be the
penalty and fine. Liable for fine, fine लगेगा up to the 5,000 rupees to the company and every officer of the company who is default, जिसकी वजह से हेल्ड नहीं हुई मीटिंग, जिसकी वजह से कंपनी मीटिंग नहीं रख पाई, तो 5,000 फाइन है कंपनी को भी और हर ऑफिसर को भी। और सेकंड कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, वाइंडिंग अप भी हो सकती है, कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि कंपनी बंद कर दो, क्योंकि इट इज़ द मैंडेटरी, इट विल बी द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। अगर तुमने पहले ही मीटिंग वो कंडक्ट नहीं करी, इट मे पुट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कोर्ट, सो it can give you order to wind up the company or close it. Next, third part is extraordinary general meeting. Sometimes matters requiring immediate consideration by members may crop up whose consideration cannot be deferred till the next AGM. एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो 12 मंथ्स के बाद होनी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होनी है, जब इनकॉर्पोरेशन होगी विद इन द 6 मंथ, पहली मीटिंग है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो है, वो मैटर्स डिस्कस करने के लिए रखी जाएगी कि जब जिनके लिए आप नेक्स्ट जो एजीएम की वेट नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनको डिस्कस करना है। दैट्स वाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी है कि वो ईजीएम को कंडक्ट कर सकते हैं, दे कैन कॉल ईजीएम। So regulation 42 of table F provides that all the journal meetings other than AGM, जितनी भी journal meetings होंगी other than AGM, उनको बोला जाता है extraordinary journal meeting. Okay. So next is who may call EGM? By board of directors, by any directors or any two members, or by the requisitionist themselves, or by NCLT. या तो board of directors करेंगे, या दो directors या any members, और requisitionist जो members हैं, other members हैं जिनकी need है, जो प्रॉपर करेंगे, नोटिस तैयार करके भेजते हैं जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एप्लीकेशन डालेंगे, ये मैटर है, इस पे डिस्कस करना है, उनको बोला जा रहा है रिक्विजिशनिस्ट। एनसीएलटी जो ट्रिब्यूनल है वो भी आपको बोल सकते हैं कि ईजीएम कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग ऑफ ईजीएम, Section 100, subsection 1 of Companies Act 2013 empowers the board to call an EGM of the company at any time when it deems fit. 100 सेक्शन के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइडेड है जो ये कहता है कि जब चाहे कंपनी वो ईजीएम को कॉल कर सकती है। Next, it says that agar board of director fails, if it fails to call an EGM, then it may be called by the requisitionist in the manner as prescribed under the section 100. So, next is legal provision regarding calling of EGM. Eligible members कौन से हैं सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 के अंदर जो कि ईजीएम को कॉल कर सकते हैं? नंबर 1 इज इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जो कंपनीज शेयर कैपिटल के साथ डील करती हैं, if they are having proper share capital, then the requisition shall be made by the shareholders holding not less than 1/10 of such paid up share capital of the company and are entitled to vote on that occasion at the said EGM. जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल करनी है, जिनके पास राइट है आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ईजीएम कंडक्ट कर सकते हैं, इफ दे आर हैविंग शेयर कैपिटल, उनकी जो शेयर कैपिटल है वो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है अगर वो 10 लाख है, तो 10 लाख का जो 1/10 हिस्सा है वो उस शेयर होल्डर के पास होना चाहिए, उतना उसका हिस्सा होना चाहिए और उसके पास वोटिंग राइट भी होना चाहिए। ओनली देन ही कैन मेक अ EGM. He can make a, you can say, the application to the registrar office or to the board of directors to call upon a EGM. In case of company having no share capital, अगर एक कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, then such number of members who have at least 10% total voting power, वो मेंबर्स जिनके पास 10% वोटिंग पावर है, दे आर इंटाइटल टू वोट ऑन दैट ओकेजन एट द सेड ईजीएम, और वो उस ईजीएम में वोट कर सकते हैं, तभी वो ईजीएम को कॉल कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल फॉर होल्डिंग द ईजीएम। Next, essentials of valid requisition, section 100 subsection 3.
The requisition shall specify the matters for the consideration of which EGM is to be called. Requisition में उन matters के बारे में discussion उसमें लिखा होना चाहिए कि जिसकी वजह से EGM को आप कॉल करवा रहे हैं. रिक्विजिशन इज अ लेटर और अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे मेंबर्स के साइन किए होंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन लिखी होगी कि किस मैटर पे डिस्कस करना है. दे आर जस्ट दे विल जस्ट ट्रांसफर इट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर वो वैलिड होगी, अगर वो एज पर द प्रोविजंस होगी, अगर कंसेंट होगी सबकी मेंबर्स की और मेंबर्स के पास अपनी उतनी शेयर कैपिटल है, उनके पास इतनी प्रॉपर वोटिंग राइट्स भी हैं, तो वो उनकी जो अप्रूव हो जाएगी. आफ्टर दैट दे कैन कॉल EGM. So it shall be signed by the requisitionist. In case of joint shareholders, it is to be signed by any one of them shall be deemed to be valid. अगर joint shareholders हैं, ठीक है, उन जॉइंट शेयर होल्डर में से कोई भी साइन कर सकता है. तो अगर किसी एक पर्सन ने भी साइन कर दिए तो माना जाएगा कि इट इज अ वैलिड रिक्विजिशन. Requisition shall be deposited at the registered office. It must be deposited at the registrar office. Next is EGM called by Board of Directors. On the receipt of a valid requisition, the board shall within 21 days proceed to call EGM to be held not less than 45 days from the date of deposit of requisition. जब बोर्ड के पास रिक्विजिशन पहुंच गई, उसने अप्रूव कर दी, तो विद इन 21 डेज वो EGM को कंडक्ट कर सकती है. प्रोसीड टू कॉल EGM 21 डेज वो लेगी कॉल करने के लिए. एंड इट इज टू बी हेल्ड नॉट लेस देन 45 डेज. जिस दिन रिक्विजिशन रिसीव करी है बोर्ड ने, उस दिन से लेके विद इन द 45 डेज, मैक्सिमम 45 डेज बोर्ड के पास टाइम है कि वो EGM को कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज EGM कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट. जब शेयर होल्डर्स खुद, मेंबर्स जो हैं, खुद वो कंडक्ट कर रहे हैं EGM को, then what will be the conditions and what will be the provisions? Number one is time period for holding EGM. It must be held within the 3 months from the deposit of requisition. जब आपने डिपॉजिट करवा दी रिक्विजिशन, that is valid, then within the 3 months आप EGM को कंडक्ट करवा सकते हैं. Manner of calling EGM. The requisitionist shall call the EGM in the same manner in which a meeting is called by board of directors. They will call in the same way जैसे board of directors conduct करवाते हैं. Reimbursement of expenses. All the reasonable expenses incurred by a requisitionist to call EGM shall be repaid to them. The sum so repaid shall be deducted from the remuneration of defaulting directors. जिन डायरेक्टर्स की वजह से मीटिंग नहीं कंडक्ट हुई, उनकी रेमनरेशन से वो पैसे कटेंगे एंड वो खर्चे उनको वापस उनको सेट ऑफ कर दिए जाएंगे उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने ये कंडक्ट करवाई होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल EGM. Section 91 subsection 1 of Companies Act 2013 provides that when for any it is impracticable to call or hold and conduct meeting of the company according to the provision of law or the article of company, NCLT may order a meeting of the company to be held or constructed in such a way. इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है कि कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट अ मीटिंग. तो NCLT जो है वो ऑर्डर दे सकती है. इट मे जस्ट पास द नोटिस दैट टू कंडक्ट द meeting. Holding a meeting is supposed to be impracticable in following circumstances. Impracticable कब होगा? When there is a dispute between the various shareholders who are lawful directors of the company to call meetings. जब shareholders को में ये झगड़ा चल रहा है कि कौन लीगल डायरेक्टर है, किसके पास राइट है. इफ इट इज देयर इज अ डिस्प्यूट, देन NCLT टेक द राइट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस फिक्स्ड फॉर द मीटिंग हैज बीन लॉक्ड. जो भी है प्लेस जो डिसाइड किया है मीटिंग के लिए, अगर वही लॉक्ड हो जाए. वेयर द कंपनी डज नॉट हैव इट्स डली अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है प्रॉपर वो बोर्ड ही कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, फ्रेम नहीं है, फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं है, देन NCLT कैन कॉल EGM. Where there is a chance of quarrel and violence at the meeting. जब ये इंटीमेशन हो, ये चांसेस हो
कि कोई झगड़ा हो सकता है या वायलेंस क्रिएट हो सकती है, एट दैट टाइम ऑल्सो जो पावर है ट्रिब्यूनल के पास चली जाएगी. So here we just end the topic, that is members meeting. In the next presentation we will discuss about the class meetings. Thank you so much students for listening.